Ooh, it is too cold out here. The winter season is there and we are all feeling cold, isn't it? But I am not feeling that cold. मुझे उतना ज़्यादा ठंडी नहीं लग रहा है. पता है क्यों? Because I am wearing a warm sweater. गर्म कपड़ा मैंने पहना है और ये कपड़ा मुझे क्या करता है? ठंड से मुझे बचाता है. It keeps me warm during the winter season. I hope all of you are wearing sweaters and things, right? So I do not know who made this, but I know that some company had made this. मुझे मालूम नहीं किसने बनाया ये, लेकिन कोई ना कोई कंपनी ने तो बनाया होगा. And I also use this muffler. This also keeps me warm when I wear it. I feel so hot inside it. But I do not wear it during summer because summer में अगर मैं ये पहनूंगा तो क्या होगा? गर्मी लग जाएगा, पसीने आएंगे. ये सारी चीज़ें विंटर में पहनने की चीज़ें हैं. So ये भी किसने बनाया ये भी मुझे नहीं मालूम. आपके कपड़े किसने बनाया आपको भी नहीं मालूम. आप कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से खरीदते होंगे, है ना. So we all use something or the other. You know this thing? I use this as a specs, but somebody has made it. I do not know who. मैं तो दुकान से खरीदा. So we all use things and we call it as materials. So today we are going to discuss a new chapter, lesson 4, and the name of this lesson 4 is materials. This is a material, the muffler is a material, this specs is a material, this watch is a material, और जिस फोन में आप इस वीडियो देख रहे हैं वो भी एक मटेरियल है. So we see and we use materials around us. There are many materials. Some materials are, for example, ball, doll, pen, pencil, paper, chair, etc. These are the things that you see. These are materials and they do not have life, you know. Some things have life. We have life, but there are some other things that do not have life. We call ourselves as living things. But those things that do not have life, we call it as what? Non-living things. Now we see so many things around us. आपके घर में, बाहर जब जाते हैं, स्कूल जब आते हैं, आप जहाँ जहाँ जाते हैं अलग अलग चीज़ों को आप देखते हैं. उन चीज़ों को हम materials कहते हैं. Now there can be many materials around us. Some materials are made by humans. इंसानों के बनाए हुए material. Like I told you, my sweater. Somebody, किसने क्या किया? किसी ने इसको बनाया अपने फैक्ट्री में, लेकिन इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो कहीं ना कहीं से उन्हें मिला है. So let me tell you, all these materials can be categorized into 2 sections. सारे जो materials हम जो यूज़ करते हैं उसको 2 चीज़ों में हम बांट सकते हैं, 2 भागों में हम बांट सकते हैं. पहला जिसे हम कहते हैं वो होता है natural material. Natural material and second is man-made material. पहला होता है natural material या natural things और दूसरा होता है man-made things. So those things we get directly from the nature. जो प्रकृति में जो हमें मिलते हैं, जो गॉड ने बनाकर हमें दिया है इस दुनिया में, वो सारी चीज़ें होते हैं हमारे नेचुरल मटेरियल. यू नो, हैव यू सीन सॉइल? मिट्टी, पत्थर, पानी. और अगर आप बर्फीले जगहों में जाते हैं तो वहाँ क्या होगा? बर्फ़. और ये सारे जो चीज़ें हैं जैसे लकड़ी, जैसे हो गया आपका गोल्ड, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं. ये सारी चीज़ें किसी इंसानों के हाथों से बनाया हुआ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नेचुरल मटेरियल्स, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से. उसी प्रकार जो दूसरा जो चीज़ है वो हमें मिलता है मैन मेड मटेरियल. मैन मेड मटेरियल या फिर हम इसे कहते हैं ह्यूमन मेड मटेरियल. इंसानों का बनाया हुआ, मैन ने जो बनाया वो चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मैन मेड मटेरियल्स. सो यू कैन थिंक अराउंड
in your mind what all the things that you see which are man-made material and which are natural material. So these are the two types of materials. So I have told you both these materials what they are, but all of these materials are getting affected by pollution. You know pollution, the smokes that come out of our factories, from the cars and all these, you know, they destroy the natural resources that are there in the nature. जो प्रकृति में हमें जो चीज़ें मिलते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करता है, प्रदूषण ख़त्म कर देता है. जैसे पानी जो नदियों में बहता है, अच्छे पानी होते हैं जिसको हम पी सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री में से जो गंदा जो चीज़ें, जो वेस्ट आता है, वो सीधे इन पानी में जाने के कारण वो पानी फिर पीने लायक नहीं होता, और जो जानवर या इंसान उस पानी को पीते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और कई बार मर भी जाते हैं. तो ये हमारी जिम्मेदारी है. इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू prevent the natural resources to be destroyed, prevent it from being destroyed. हमें रोकना है कि हमारा natural resource ऐसे ख़त्म ना हो. We should protect these natural resources. पानी को हम प्रदूषित होने से, गंदा होने से हम बचा के रखें. So let me give you a small advice. When you eat toffees, when you eat lays, when you eat different things, do not put your waste, जो रैपर्स हैं, जो प्लास्टिक है, उसको ज़मीन पे मत डालें, क्योंकि उससे सॉइल जो है वो ख़राब हो जाता है. Always use dustbins. Whenever you go through some place, if you see plastics, wrappers, वहाँ पड़ा हुआ अगर आपको दिखता है, आप उसे वहाँ से उठाना है और कहीं ना कहीं जाकर उसे किसी डस्टबिन में डाल देना है. ऐसे धीरे धीरे करके जब हम ऐसे अपने कदमों को बढ़ाएंगे, तब हमारे नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो बचे रहेंगे, एंड वी कैन एन्जॉय ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेस. मोस्ट ऑफ दिस मैन मेड रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाया जाता है. नेचर से हम कुछ मटेरियल को लेते हैं और उन मटेरियल को हम क्या करते हैं, ह्यूमन मेड मटेरियल बना देते हैं. जैसे हमें नेचर से धागा मिला और उस धागे को हमने क्या किया, बुन बुन के फैक्ट्री में या किसी जगहों में मशीन के अंदर डाल के बुन के ये स्वेटर निकला है. जो आप पेपर यूज़ करते हैं वो भी पेपर कहीं ना कहीं किसी पेड़ से निकाला गया है, और उस पेड़ में से निकाल के उसको काम करके और उसको किताब के रूप में आपके हाथ में दिया जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर फ्रॉम आवर नेचुरल रिसोर्सेज. So I hope you have understood what are the materials and what are the two different types of materials. So we are going to discuss it more, and on Monday when you come to school, I hope all of you are going to come to school. We will discuss more on this topic. Thank you so much.